Hello students, welcome to the class, and today we are going to see application of linear differential equation to electrical circuit. So we are seeing the application part for the linear differential equation, and we will deal with the RL circuit, that is a resistance and inductance, then RC circuit, resistance and it is conductance. Solved example on that and example for the practice I have given you. So first of all, we'll see it is standard form and the solution of the linear differential equation. Dy by dx plus py equals to q, where this p and q are the functions of independent variable, and this equation is said to be what? Linear in y, and its solution will be given by it is dependent variable, that is y, into the integrating factor, integration RHS part q into integrating factor dx plus c. So we can write down the solution as y into e to the power integration of p dx equals to integration q e to the power integration p dx plus c. Already we have seen this formulae of linear differential equation in the previous lecture. Let us proceed for the example. Example number 1. When a resistance R ohms is connected in series with an inductance L henries with a constant EMF of E volts, the current I amperes at time t is given by L di by dt plus Ri equals to E. So differential equation is already given to you, which contain it is what? Inductance L and the resistance R with applied EMF E. Find the current at time t if I equals to 0 and t equals to 0. So this is the initial condition is given to you. So whatever the arbitrary constants comes in the solution, that arbitrary constants can be evaluated by using this condition. So first of all, we write down the given differential equation as it is and in the standard form. And for the standard form, the coefficient of di by dt, it should be, it is what? Unity. तो इसे हम L से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस, इट इज व्हाट? di by dt प्लस r by l i इक्वल्स टू e by l. नाउ ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इट इज i, and independent variable is what? It is t. So here solving this equation means finding the value of current I at any time t. This equation is also said to be, it is linear in I because degree of I is what? 1, and its derivative also comes under the first degree. So this equation is linear in I. So इसको solve करने के लिए हम क्या करते हैं? I का जो coefficient है R by L, अभी तो constant है, ओके, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे एक्सपोनेंशियल के पावर में विथ रिस्पेक्ट टू द t, तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा. ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है. सो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ R by L, इट इज dt, R by L तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इट इज व्हाट? t. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस इक्वेशन इज व्हाट? e टू द पावर R by L into t. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद अब आपको लिखना पड़ता है सोल्यूशन. सोल्यूशन इज गिवन बाय इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन this RHS part which is constant E by L into the integrating factor dt plus c. तो E by L को आप बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन आपको सिर्फ e to the power R by L into t का करना पड़ेगा. सो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन तो सेम होगा, e के जो पावर में है उसका हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द t. तो आपको मिलेगा इट इज व्हाट? R by L, जिसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे. तो यहाँ पे देखिए आप L गेट कैंसिल्ड. दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जहां पे हम e टू द पावर R by L से इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं. सो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ I इक्वल्स टू इट इज व्हाट? E by R प्लस C इंटू e टू द पावर माइनस R by L इंटू t. अगर आपने डिवाइड किया तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस R by L इंटू t होगा, या अदरवाइज आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं e टू द पावर माइनस R by L इंटू t से, तो आपको सेम इक्वेशन यहाँ पे मिलने वाला है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट I at any time t, but it was asked to you find out the value of current I when I is 0 and t is 0. तो हम यहाँ पे I0 t0 पुटअप करते हैं, तो I अगर मैंने 0 पुटअप किया देखिए यहाँ पे, और t0 पुटअप करते क्या होगा? I0 यहाँ पुटअप करेंगे, t0 यहाँ पुटअप करेंगे, तो e टू द पावर 0 क्या होता है? इट इज 1. दिस इज 0, तो 0 इक्वल्स टू e by r प्लस c e टू द पावर 0, एंड e टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो c आ जाएगा, इट इज व्हाट? वी आर हैविंग माइनस e by r, ओके. तो ये आ गया c, ये c का वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा. देन I इक्वल्स टू इट इज व्हाट? E by r माइनस e by r इंटू दिस क्वांटिटी, जिसमें से e by r आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारा वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा, इट इज व्हाट? I इक्वल्स टू e by r 1 minus e to the power minus R by L t. Okay, when t equals to 0, this value of the current will be this one. So this way we have found the solution for this RL circuit problem, and we have found the value of current at time t. अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिया नहीं है, बट आपको अगर पता है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ओके, जिसमें इंडक्टेंस L है और इट इज व्हाट? वी आर हैविंग द अप्लाइड EMF E वोल्ट्स विद द रेजिस्टेंस R ohms. तो इसको भी हम बाय यूजिंग द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये इक्वेशन को हम बना सकते हैं. कि कैसे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं बाय यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ, वो आपको मैं बता देता हूं. सपोज मेरे पास इंडक्टेंस L दिया हुआ है, ओके, सीरीज फॉर्म में लगा हुआ है, एंड एज वेल एज वी आर हैविंग द रेजिस्टेंस R, ठीक है, और यहाँ पे हमको एक अप्लाइड EMF E यहाँ पे सपोज
अप्लाई किया हुआ है, ओके, एंड करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L हमको निकालना पड़ता है, वो होता है L di/dt, आपको याद रखना पड़ेगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R निकालना पड़ता है, तो इट इज व्हाट R इंटू I इक्वल्स टू द टोटल अप्लाइड EMF जो रहता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। दिस इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो दैट इज सम ऑफ voltage drop across each component here in the series form will be equals to the total applied EMF. So this way we form that is what differential equation for the LR circuit. वैसे हम सामने में प्रॉब्लम देखने वाले RC सर्किट का, वहां भी हम सर्किट फॉर्म करके डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं, उसे भी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। ये मैंने यहाँ पे इसलिए बताया, कभी कभी एग्जांपल में आपको इक्वेशन नहीं दिया रहता है तो आपको इस तरह से किरचॉफ्स लॉ का यूज करके उसको फॉर्म करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो LR सर्किट है सीरीज फॉर्म में तो हमेशा इस तरह से वो फॉर्म होगा और बाद में फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट यहाँ पे दिया हुआ है, सो इट इज वेल एंड गुड। नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। इट इज एग्जांपल नंबर 2। We are having solve the equation L di/dt plus Ri equals to E0 sin omega t, where L, R, E0 are constant and discuss the case when t increases indefinitely। अब सॉल्व करने के लिए बोला है, मतलब आपको I का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ये भी देखिए यहाँ पे LR सर्किट है हमारे पास है और टोटल अप्लाइड EMF हमको दिया हुआ इट इज व्हाट E0 sin ओमेगा t। तो पिछले एग्जांपल में और इस एग्जांपल में थोड़ा सा फर्क है, जहां पे बस RHS पार्ट सेम है, तो आपका सोल्यूशन यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे कोई कंडीशन भी नहीं दी है आपको, ओके, जिससे आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इवैल्यूएट करें। तो आपको इवैल्यूएट करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ हमारा सोल्यूशन रहेगा दैट विल बी द फाइनल सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जिसके लिए हम इसको L से डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया यहाँ पे। अब इसके बाद आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, बिकॉज दिस इक्वेशन इज व्हाट लीनियर इन I। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम रहेगा जो हमारा पिछले क्वेश्चन में था, दैट इज गिवन बाय IF इक्वल्स टू e to the power इंटीग्रेशन R/L dt इक्वल्स टू e to the power R/L into it is t। अब आप सोल्यूशन लिख लीजिए। सोल्यूशन विल बी गिवन बाय डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन दिस RHS पार्ट इनटू इट इज व्हाट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस c। अब यहाँ पे हम t से इंटीग्रेट कर रहे हैं बिकॉज t हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे E0/L तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेंगे। और देखिए मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले लिखता हूँ और बाद में साइन फंक्शन लिखता हूँ। क्यों? बिकॉज हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका। अब वो फॉर्मूला क्या है मुझे बताइए आप। ओके, आई सपोज कि वो फॉर्मूला आपको पता होगा, तो भी मैं आपको लिस्ट आउट कर देता हूँ कि वो फॉर्मूला क्या है। आपको ये बस फॉर्मूला पे अप्लाई करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, ओके, अदरवाइज वो बहुत लेंदी जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं दैट इज e to the power ax, इट इज हमारे पास साइन है यहाँ पे, तो हम साइन का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। इट इज sin bx एंड dx, इट इज इक्वल्स टू नथिंग बट e to the power ax अपॉन इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहले हम a लिखेंगे, बाद में हम b लिखेंगे। a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इट इज व्हाट साइन, तो हो जाएगा इट इज व्हाट sin bx एंड देन माइनस इट इज cos bx, ये आपको लिखना पड़ेगा, प्लस c दैट इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब फॉर्मूले को आपको याद कैसे रखना है, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप यहाँ पे एज इट इज रखेंगे। अब कोएफिशिएंट ऑफ x जो यहाँ पे उसका स्क्वायर करना है, तो आ गया a स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे जो एंगल में है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज b स्क्वायर यहाँ पे आ गया। देन ब्रैकेट में आपको कैसे लिखना है, a पहले आएगा b बाद में आएगा, और अगर यहाँ पे साइन है तो पहले साइन आएगा और उसके बाद कॉस आएगा, साइन bx एंड कॉस bx, और साइन है इसलिए बीच में माइनस साइन आपको लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद रखने का मैंने आपको ट्रिक बताया। वैसे एक सिमिलर फॉर्मूला होता है e to the power ax, इट इज cos bx dx का, ओके। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो साइन bx की जगह पे क्या, इट इज व्हाट cos bx। फॉर्मूला सिमिलर है, थोड़ा सा फर्क है। फर्क कहाँ है उसको हम देखते हैं। e to the power ax इट इज अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, हमने ये वाला तो टर्म एज इट इज रहेगा, पहले a लिख लेना है आपको, बाद में b लिखना है। अब देखिए यहाँ पे पहले cos आया हुआ है तो हम पहले लिखेंगे इट इज व्हाट cos, तो इट इज व्हाट cos bx, और बाद में लिखेंगे इट इज व्हाट sin bx, और यहाँ पे cos है तो हम बीच में डालेंगे प्लस साइन, ओके। जब साइन रहेगा तो आपको बीच में माइनस साइन डालना पड़ेगा, प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इस तरह से अप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे तो वेरिएबल मैंने x लिया था और यहाँ पे वेरिएबल का इट इज व्हाट t, तो e raised to the power r/l into t को आप कंपेयर करेंगे e raised to the power ax से, तो x का कोएफिशिएंट a यहाँ पे t का कोएफिशिएंट इज व्हाट r/l, तो a क्या हो गया आपका r/l। sin ओमेगा t को आप कंपेयर कीजिए sin bx से, तो वहां से आपको b मिल जाएगा, b का वैल्यू क्या होगा, इट इज व्हाट ओमेगा, और उसके बाद फिर आप इसको फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बताता हूँ। अब ये तो कांस्टेंट है E0/L, ये एज इट इज रहेगा, e to the power r/l into t, इसको एज इट इज लिखिए। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के ऊपर में जो है t का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब वो a स्क्वायर हो जाएगा r² बाय l स्क्वायर, प्लस
बाद में यहाँ पे जो टी का कोएफिशिएंट क्या है ओमेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये ओमेगा स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए पहले तो ए आता है, ए मतलब क्या है, इट इज व्हाट आर बाय एल, बाद में ओमेगा आएगा तो यहाँ पे ओमेगा लिख दिया, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे पहले हम लिख इट इज व्हाट साइन ओमेगा टी, माइनस डालेंगे देन इट इज व्हाट कॉस ओमेगा टी एंड दिस इज वी आर हैविंग प्लस सी। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और फॉर्मूले को इस तरह से लिस्ट आउट कर सकते हैं। आपको ये बस फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बिकॉज अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये बहुत लेंदी जाता है। सो सेम थिंग आई हैव रिटन इन द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज इट, इट इज E0 बाय एल, देखिए वही चीज e टू द पावर r बाय एल, r बाय एल का स्क्वायर हम लेंगे देन प्लस ओमेगा स्क्वायर, a लिखा b लिखा साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना मतलब क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा, ये अपॉन एल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ओके, उस क्वांटिटी को फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, इट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय इट इज एल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मैंने दोबारा रिपीट कर दिया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद देखिए ये सिंप्लीफाई करते हैं, एल एल यहाँ पे गेट कैंसिल्ड और ये एल ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा इट इज व्हाट E0 एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और हमने साइमल्टेनियसली क्या किया है, e टू द पावर r बाय एल से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ऊपर लेके जाएंगे तो e टू द पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। एक तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको e टू द पावर r बाय एल इंटू टी से, तो आपको ये i का वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट i एट एनी टाइम t। नाउ वी हैव टू डिस्कस द केस व्हेन t इंक्रीजेस इंडेफिनेटली। अब t इंक्रीजेस इंडेफिनेटली मतलब t विल टेंड्स टू इट इज व्हाट इन्फिनिटी, उस टाइम हमको केस डिस्कस करना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ i। तो यहाँ पे देखिए t कहाँ पे आ रहा है, t तो इस फंक्शन में आ रहा है साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे एक t आ रहा है। तो आप यहाँ पे अगर t इन्फिनिटी पुट अप करते हैं तो क्या होगा, देखिए तब हम बोल सकते हैं एज t इंक्रीजेस इंडेफिनेटली दैट इज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस क्वांटिटी एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी विल टेंड्स टू जीरो। अभी कैसे जीरो होता है उसको मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे t को इन्फिनिटी पुटअप किया, नाउ व्हाट इज दिस क्वांटिटी, इट इज e टू द पावर माइनस r बाय एल इंटू टी। इस क्वांटिटी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर r बाय एल इंटू टी। ओके, अब यहाँ पे आप इन्फिनिटी पुटअप कीजिए तो ये क्वांटिटी हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी। e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज इन्फिनिटी। ओके, सो हम बोल सकते हैं दिस क्वांटिटी इज 1 बाय इन्फिनिटी, देयरफॉर दिस इज टेंड टू इट इज व्हाट जीरो। Therefore, we say that e to the power minus r by l into t will tends to infinity when t tends to it is what infinity। I suppose ये क्लियर है। अब देखिए साइन ओमेगा टी यहाँ भी है, कॉस ओमेगा टी यहाँ भी है, अगर t इन्फिनिटी को जाएगा तो क्या होगा, देखिए आपको पता है कि साइन और कॉस जो रहते हैं दे टेक्स द वैल्यूज इन बिटवीन इट इज व्हाट -1 to +1, इसी के बीच में वो हमेशा वैल्यू लेते हैं। Therefore, if t tends to infinity, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आपका ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म कंप्लीटली निकल जाएगा। Therefore, we can write the I equals to this quantity, बस आपको लास्ट क्वांटिटी यहाँ पे एक्सक्लूड कर देनी है। So this is the value of the current I at any time t. Okay, this is the final solution for the given differential equation. तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस था, यहाँ पे RHS पार्ट बस हमने थोड़ा सा अलग लिया, पिछले इसमें वो कांस्टेंट था, बहुत ही सिंपल तरीके से फिर हमने उसको सॉल्व किया, और यहाँ पे फिर आपको इंटीग्रेशन में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा। तो वैसे दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने फिर एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है जो एग्जामिनेशन में आया हुआ है। नाउ प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन टर्म्स ऑफ करंट I फॉर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग द रेजिस्टेंस R एंड कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C इन सीरीज इज E इक्वल्स टू RI plus integration I by C dt. Find the current I at any time t and when E equals to E0 sin omega t. अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ये जो सर्किट है ये RC सर्किट है और वो सीरीज फॉर्म में है, जिसमें अप्लाइड EMF आपको दिया हुआ इस तरह से, मतलब इक्वेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द करंट वैल्यू ऑफ I एट एनी टाइम t, और आपको E को रिप्लेस कर देना है E0 sin ओमेगा t से यहाँ पे। तो हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। अब देखिए अगर ये चीज नहीं दी है, मानो आपको कभी कभी सिर्फ बोलते हैं कि इट इज RC सर्किट वी आर हैविंग इन द सीरीज फॉर्म, तब RC सर्किट रहता कैसा है, वी आर हैविंग इट इज अबाउट रेजिस्टेंस R with कैपेसिटर C we are having with applied EMF E, हमारे पास यहाँ पे रहेगा सपोज। ओके, एंड करंट I is flowing through this circuit, तो यहाँ पे हो गया रेजिस्टेंस A। नो, मैंने अभी आपको बताया था कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको यूज करना पड़ेगा और वहां से फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज गिवन बाय इट इज व्हाट RI, देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज व्हाट C,
it is given by it is what q by c and equals to it is we are having the applied EMF E. अब देखिए q क्या होता है, ये जो इक्वेशन है तो आपको q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब चार्ज के फॉर्म में या फिर करंट के फॉर्म में. सो देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ करंट कि हम q को हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ I dt and this we are having C equals to E. तो इस तरह से आपको ये जो गिवन अप्लाइड EMF है ये आपको दिया हुआ है. अगर नहीं दिया तो हम इस तरह से फॉर्म भी कर सकते हैं. अब आपको यहाँ पे पूछा क्या है, आपको निकालना है इट इज व्हाट करंट I एट एनी टाइम t. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है. तो इसको हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द t. Then we will get is what differential equation जिसको हम solve कर सकते हैं. Now we proceed for the solution. The given equation can be written as, देखिए आपको e को रिप्लेस कर देना E0 sin ओमेगा t से, और इस क्वांटिटी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूं. तो then this will be ri प्लस इंटीग्रेशन I by c dt इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t. आपने e को रिप्लेस कर दिया E0 sin ओमेगा t से. तो दिस इज नॉट द डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द t. तो अगर मैं r तो कांस्टेंट है हमारा, डिफरेंशिएट किया तो i का डिफरेंशिएशन होगा, इट इज व्हाट di by dt प्लस अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द t. सो दिस इंटीग्रेशन dt विल गेट कैंसल्ड, बिकॉज आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इनवर्सेस है ईच अदर के. तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ इज व्हाट 1 by c कांस्टेंट और यहाँ पे i बचेगा इक्वल्स टू इट इज व्हाट E0. साइन का भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, साइन ओमेगा t का होगा इट इज व्हाट कॉस ओमेगा t, और ओमेगा t का डिफरेंशिएशन इट इज व्हाट इनटू ओमेगा. ओके, बिकॉज t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1. ओमेगा इज व्हाट, इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी. तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन. बट ये इक्वेशन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग बाय इट इज व्हाट r, बिकॉज हमको di बाय dt का कोएफिशिएंट यूनिटी करना पड़ता है. तो इसको डिवाइड कर दिया आपने r से कंप्लीट इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन आ गया. और इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इन I, बिकॉज I का डिग्री 1 आ रहा है हमारे पास और di बाई dt का भी डिग्री यहाँ पे 1 आ रहा है. तो I का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हम एक्सपोनेंशियल के पावर में इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज t. तो हमको IF मिल जाएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय RC dt, अब RC तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, तो e टू द पावर 1 बाय RC t आपको मिल गया. ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब उसके बाद हम लिखेंगे इट इज व्हाट सॉल्यूशन दैट इज गिवन बाय dependent variable it is I into the integrating factor equals to integration, it is then RHS part of the equation as it is लिख देंगे into integrating factor dt plus c. अब E0 ओमेगा एन r ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे. एक्सपोनेंशियल को पहले लिखते हैं, बाद में कॉस को लिखते हैं. देन वी गॉट दिस इक्वेशन. ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट आपको भी फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा. कौन सा फॉर्मूला था, इट इज e टू द पावर ax cos bx dx. क्या होता है, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर. पहले आपको a लिखना है, बाद में b लिखना है. यहाँ पे cos bx है तो पहले आप cos bx लिखेंगे और बाद में sin bx, बाद में प्लस डालेंगे. तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एज इट इज लिखूंगा, बाद में t का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे हम, और जो cos ओमेगा t है यहाँ पे तो उसमें t का जो कोएफिशिएंट है ओमेगा उसका स्क्वायर कर देंगे. मतलब ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बाद में a लिख दीजिए आप 1 बाय RC, b लिख दीजिए ओमेगा. यहाँ पे cos ओमेगा t है तो आपने लिख दिया पहले cos ओमेगा t और बाद में लिख दिया sin ओमेगा t, और cos है तो आपको बीच में प्लस डालना पड़ेगा. अगर यहाँ पे sin रहता तो हम क्या करते थे, यहाँ पे माइनस लिखते थे. तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, तो आपको sin और cos दोनों के फॉर्मूले यहाँ पे पता चल जाते हैं. अब इसके बाद हमारा जॉब है इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर c स्क्वायर. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा अपॉन r स्क्वायर c स्क्वायर. तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कैसे लिखेंगे, देखो इस तरह से. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद देखिए एक r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r c स्क्वायर बचेगा जो ऊपर चले जाएगा. और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, ये e टू द पावर 1 बाय RC t, e टू द पावर 1 बाय RC t से इसको डिवाइड कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर दीजिए आप e टू द पावर -1 बाय RC t से पूरे इक्वेशन को. तो आपको ये क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाएगी. देखिए RC स्क्वायर ऊपर आ गया, E0 ओमेगा भी हमारे पास है और ये क्वांटिटी नीचे में, और बाद में आपने डिवाइड कर दिया इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, तो आपको ये मिल गया वैल्यू ऑफ करंट I, और इसे हम कहते हैं इट इज व्हाट रिक्वायर्ड करंट I एट एनी टाइम t. अब यहाँ पे देखिए आपको कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकालना है, बिकॉज आपको कंडीशन कोई नहीं दी है, यहाँ पे कोई इनिशियल कंडीशन नहीं दी है. अगर इनिशियल कंडीशन आपको दी रही सपोज I0 T0, तो वहां से आप c का वैल्यू यहाँ से निकालते और c का वैल्यू फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते, देन दैट विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ करंट I. बट यहाँ पे आपको कांस्टेंट नहीं निकालना है, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन.
नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस एप्लीकेशन पार्ट, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन है पेपर सेटर का, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है। कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। इट इज अ 20 ohms resistor is connected in series with a capacitor of 0.01 farad and EMF E volts given by 40 e to the power minus 3t plus 20 e to the power minus 6t, and if q equals to 0 at t equals to 0, show that the maximum charge on the capacitor is 0.25 coulomb। अब यहाँ पे वो चार्ज निकालने की बात कर रहा है, करंट की बात नहीं कर रहा है। तो अभी आपको जो इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा उसके अंदर चार्ज आना चाहिए, मतलब क्यू आना चाहिए, वो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्यू होना चाहिए। पहले तो आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। ओके, तो आपको 20 ohms रेजिस्टर दिया हुआ है कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर ऑफ 0.01 फैरेड। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मैं अभी आपको बताया कैसे बनाते हैं। दिस इज नथिंग बट वी आर हैविंग द आरसी सर्किट। आर मतलब इट इज व्हाट, रेजिस्टेंस हमारे पास है और कैपेसिटर यहाँ पे लगाया हुआ है, और अप्लाइड ईएमएफ भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एंड करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं यहाँ पे, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर दैट इज गिवन बाय इट इज व्हाट, आर इनटू आई, प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी दैट विल बी गिवन बाय इट इज क्यू बाय सी इक्वल्स टू अप्लाइड ईएमएफ ई। अब ई का तो वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए इट इज व्हाट 40 e to the power minus 3t एंड 20 e to the power minus 6t। इसको तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 40 e to the power minus 3t एंड दिस इज प्लस 20 e to the power minus 6t। अब उसके बाद आपको यहाँ पे चार्ज का वैल्यू निकालना है, तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए करंट और चार्ज के बीच में क्या होता है। सो बाय डेफिनेशन द करंट इज डिफाइंड एज I इक्वल्स टू इट इज व्हाट dq by dt, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम t होता है। तो हम यहाँ पे I के जगह पे dq by dt लिख देते हैं, बिकॉज हमको यहाँ पे चार्ज निकालना है, एंड दिस इज व्हाट q by c। अभी आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको आप r से डिवाइड कर देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे आपको r का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इट इज व्हाट 20। तो यहाँ पे आप r का वैल्यू 20 लिख देंगे, और कोई वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या, यस कैपेसिटर का भी वैल्यू दिया हुआ है आपको, इट इज 0.01, जिसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ Ri प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू ई ऑफ टी, जो मैंने अभी बताया, आपको E का वैल्यू दिया हुआ है उसको आपने डाल दिया, R का भी वैल्यू दिया हुआ है और C का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको आप 20 से डिवाइड कर दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। 20 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज 0.2, और यहाँ पे 20 से डिवाइड किया तो ये 2, 20 से डिवाइड किया तो इज व्हाट 1, तो 1 by 0.2 क्या होता है, इट इज व्हाट 5। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर इन क्यू। अब लीनियर इन क्यू है तो यहाँ पे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद सोल्यूशन। फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अभी जो q का कोएफिशिएंट है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे एक्सपोनेंशियल के पावर में विद रिस्पेक्ट टू द t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी गिवन बाय e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 5 dt। 5 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, इट इज जस्ट t, तो हमारा i हो जाएगा e टू द पावर 5t। नाउ वी राइट डाउन द सॉल्यूशन एंड दैट विल बी गिवन बाय इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन द RHS पार्ट ऑफ द इक्वेशन इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस c। अब देखिए आप e टू द पावर 5t से इस कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो -3t और प्लस 5t ये हो जाएगा 2t, और -6t प्लस 5t हो जाएगा इट इज व्हाट -t। तो हमको ये क्वांटिटी यहाँ पे मिल गई। अब इसका इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, e टू द पावर 2t का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर 2t अपॉन 2, और e टू द पावर -t का इंटीग्रेशन e टू द पावर -t अपॉन -1। ऐसा सपोज आपको आता है, बिकॉज इसके पहले भी हमने ऐसे इंटीग्रेशन से डील किया हुआ है। ये 2 यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज वी आर हैविंग द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और यहाँ पे आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c दिख रहा है, तो c का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, बिकॉज q इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन आपको दी हुई है, तो इस कंडीशन का हम यूज करेंगे और कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं। उसके पहले इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं और इसको e टू द पावर 5t से डिवाइड करते हैं, या e टू द पावर -5t से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्वांटिटी यहाँ से कट जाएगी, ये हो जाएगा e टू द पावर -5t। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5t प्लस 2t हो जाएगा -3t, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो रहे हैं, यहाँ भी बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे, तो -5t और -t इट इज -6t प्लस c इंटू e टू द पावर -5t। अब आप कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, q इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0, तो q आपने 0 पुट अप किया, e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1, यहाँ पे 1 - 1 तो 0 हो गया, तो c का वैल्यू हमको डायरेक्टली 0 मिल रहा है, तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ चार्ज मतलब q हो जाएगा q इक्वल्स टू e टू द पावर -3t माइनस e टू द पावर -6t। so this is the value of charge we are having। अब देखिए आपको पूछा क्या है,
शो दैट द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0.25। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है चार्ज की। अब ये तो आपने चार्ज निकाल लिया हुआ है, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन होता है, उसका आपको यूज करना पड़ता है। उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस क्यू, मतलब dq/dt निकालेंगे और उस इक्वेशन का यूज करके फिर बाद में जो सेकंड डेरिवेटिव होता है उसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। अगर उसका साइन नेगेटिव आता है तो फंक्शन मैक्सिमम होता है, और अगर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मिनिमम होता है। अगर आपको क्लियर नहीं होएगा तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू, पहले तो आपको dq/dt इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा इक्वेट। व्हाट इज द क्यू वैल्यू? इट इज e⁻³ -60। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन? इट इज एक्सपोनेंशियल का सेम रहेगा, देन -3t का -3 आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा। वैसे e⁻60 का सेम होगा, देन -60 का हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा +60। तो इस इक्वेशन को आप -3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा e⁻3t -2 e⁻60। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं e⁻3t। तो अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा e⁻3t। इसको आप रीचेक भी कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करके देखिए वही आता है कि नहीं। सो अगर मैंने e⁻3t मल्टीप्लाई किया तो दोनों का एडिशन आ जाएगा, -3t इज व्हाट? -60। सो ये करेक्ट है हमारे पास। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी जीरो नहीं होता है, तो हमारा 1 - 2 e⁻3t इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो से, ओके, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 e⁻3t में आरएचएस पार्ट में ले गया तो ये प्लस हो गया। यहां से e⁻3t का वैल्यू निकालता हूं, इट इज व्हाट? 1/2। अब हमने e⁻3t का ही वैल्यू क्यों निकाला? बिकॉज जो आपको q दिया हुआ है वहां पे e⁻3t है और यहाँ पे भी e⁻3t है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहां से e⁻3t का वैल्यू निकाला। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे q का। तो फर्स्ट तो हमने ये निकाला हुआ है, तो सेकंड क्या होगा? इट इज व्हाट? d²q/dt² विच विल बी गिवन बाय, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, इसको आपने अगर एक बार और डिफरेंशिएट किया तो एक्सपोनेंशियल का तो सेम रहेगा डिफरेंशिएशन, -3t का -3 आएगा तो +9 हो जाएगा ये, तो +9 e⁻3t। वैसे फिर अगर हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया e⁻60 को तो -6 यहाँ पे आएगा तो -36 हो जाएगा और e⁻60 एज इट इज रहेगा। तो दिस इज अवर व्हाट? सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव का आपको साइन चेक करना है इस पॉइंट के ऊपर, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू अब निकालना पड़ेगा e⁻3t इक्वल्स टू 1/2 पे। अब इसको हम कैसे निकालेंगे देखिए, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, e⁻3t क्या हो जाएगा? इट इज व्हाट? 1/2 और e⁻60 क्या हो जाएगा? इट इज व्हाट? 1/2 का स्क्वायर। अब ये 1/2 का स्क्वायर क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे भी हमने इंडाइसेस रूल लगाया। देखिए e⁻60 को आप कैसे लिख सकते हैं? e⁻3t का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज -3t इंटू 2 इज व्हाट? -60। तो e⁻3t का वैल्यू आपने पुटअप किया, इट इज व्हाट? 1/2 और 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? इट इज व्हाट? 1/4। तो 1/4 हमने यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई टू इट इज व्हाट? 36 वी आर हैविंग। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए एंड देन वी आर हैविंग द d²/dt² वैल्यू एट दिस पॉइंट, और ये वैल्यू हमें आती है 9 - 9 दैट इज -9/2 विच इज नेगेटिव। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आई है, तो हम मैक्सिमम मिनिमा के कंडीशन के हिसाब से बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू ऑफ q इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट e⁻3t इक्वल्स टू 1/2। और अब आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी निकालने को बोला है, उसको शो करने को बोला है, इट इज व्हाट? 0.25 कूलम। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे, q आपको पता है क्या है? e⁻3t e⁻60। तो e⁻3t का वैल्यू हमने क्या लिया है? 1/2, तो मैंने यहाँ पे 1/2 लिख लिया। e⁻60 को अभी मैंने आपको बताया कैसे लिख सकते हैं, e⁻3t का होल स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो 1/2 - 1/4 हो जाएगा, इट इज व्हाट? 1/4 एंड दैट इज नथिंग बट 0.25। और हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? चार्ज, और उसका यूनिट होता है इट इज व्हाट? कूलम। तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज क्या आ गया? 0.25 कूलम। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द पेपर सेटर। मैक्सिमम टाइम ये एग्जामिनेशन में आता है। तो यहाँ पे आपको दो कंसेप्ट क्लियर हो गए, एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम किस तरह से चार्ज का वैल्यू निकालते हैं, और साथ ही साथ कैसे हमने मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन यूज करके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज यहाँ पे निकाला हुआ है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज निकालने के लिए आपको तो पहले आपको q को डिफरेंशिएट करना पड़ता है t से, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, उसको इक्वेट करते हैं 0 से, और बाद में सेकंड डेरिवेटिव फिर से हम निकालते हैं और उसका साइन चेक करते हैं एट दिस पॉइंट। अगर वो नेगेटिव है तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम रहेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो फंक्शन हमारा मिनिमम रहेगा। आई सपोज एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको एक्सरसाइज के लिए दिया हुआ है,
बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ये। दिस इज सिमिलर टू द सेकंड एग्जांपल जहां पे E0 sin ओमेगा टी था, तो यहाँ पे ओमेगा नहीं दिया हुआ है आपको, देखिए डायरेक्टली sin t दिया हुआ है। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एज कम्पेयर टू दैट सेकंड वन, उसका आप यूज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्टली आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you get something from it, please like and share the video and please do subscribe the channel Mathematics-Ganit संग्रह। यहाँ पे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट दी हुई है, अगर आपके कोई रिलेवेंट टॉपिक आपको चाहिए तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मैथमेटिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ।